नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग टू अ फाइल। हाउ टू राइट टू अ टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। So we can write characters into file using following two methods. With the help of write functions or write line functions, we can write something to a file. So write it takes, first of all, write function. It takes a string as argument and add to the file. We have to use /n in string to end of line character. So with the help of write functions, we can add some text or we can write to a text file. Similarly, with the help of write line, we can also write list tuple into a file. So write lines, if we want to write list tuple into the file, then we use write lines function. Now see the example program to write data to a file. It is a simple program. F equals to open hello.txt. Here file name is hello and the extension of file is txt. Txt means text file and file mode is w. W means here we are going to write something to a file. Now app.write, this is file handling program /n app.write. I am writing data /n app.write to a file. So here we return three statements or 3 lines. Now last one, print data return successfully and we have closed the file. So the output of the file is, this is file handling program. I am writing data to a file. So this is a simple program. Now another program to write a file using write lines method. Program to write data in a file using write lines method. Now f equals to open data.txt. Now file name is data and w means we are opening a file in writing mode. Now data or list equals to, here we are passing a list. The content of list are physics, chemistry, maths and computer science. Here we are passing 4 elements to a list. Now app.write lines. Here we are using write lines method in place of write. So write lines method is used to write list or tuples. Now print data return successfully. Now app.close. Here we closed the file. Now what will be the output? When we read this file, the output will be physics, chemistry, math and computer science. Now next, here we are writing to a file using with. So we can also write like this, or we can also use write lines function like this. For example, with open file name and write mode of file. Here W means it is a mode to write to a file as F. List equals to same as in previous example, physics, chemistry, math, computer science. F dot write line, we are passing list to this function. Now when we print this function, the result is same as previous program. With the help of with, we can also use write lines function. with का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, राइट लाइन जो मेथड है हमारा उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में किया है मैंने, with open rkm3.txt और w means we are going to write to a file as f, तो उसको एलाइज कर दिया हमने f। ओके, नाउ लिस्ट में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस पास कर दिया है, उसको राइट कर दिया। ठीक है, जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं और ये एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ फाइल rkm3.txt, मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। इसी फाइल को मैंने इसी तरीके से ओपन भी कर लिया है rkm3.txt और यहाँ पर मैंने r मीन्स वी आर रीडिंग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो इसको मैं जैसे डिस्प्ले करूंगा, मेरा आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। नाउ नेक्स्ट है
अपेंडिंग। नेक्स्ट क्या है मेरा? अपेंडिंग इन ए फाइल। हमने कई सारे मोड्स पढ़े थे पिछले वीडियो में, इसमें एक था हमारा अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स राइट समथिंग टू ए एग्जिस्टिंग फाइल। किसी एग्जिस्टिंग फाइल में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। A mode is used to accomplish this task. It means opening a file in write mode, and if file is existing, then adding data to the end of the file. Append means adding something new to the existing file. पहले से हमारी फाइल बनी है, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। अभी हमने फाइल बनाई थी rkm3.txt। ये टेक्स्ट फाइल rkm3 पहले से बनी हुई है। अब मैं उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, बायोलॉजी। तो मैंने rkm3.txt को कौन से मोड में यहाँ पर ओपन किया है? अपेंड मोड में। A मीन्स अपेंड मोड। नाउ app.write बायोलॉजी, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया है, सेम प्रोग्राम है, इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए बायोलॉजी ऐड हो गया। तो ये हमारा कौन सा मोड है? अपेंड मोड। अब हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे और कुछ डेटा फाइल में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू राइट यूजर इनपुट डाटा टू ए फाइल। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम क्या करेंगे? हम यूजर से इनपुट लेंगे और फाइल में ऐड करेंगे अपेंड मोड का यूज करते हुए। तो इधर एक प्रोग्राम बनाया है, को रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम रन हो गया। इनिशियली th equals to y, app equals to open student dot app equals to open student dot txt. Here file name is student and the opening mode of file is append. एक while loop लगाया यहाँ पर कि जब तक हम कैपिटल Y और स्मॉल y देंगे तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। Now name equals to input, enter your name, age equals to int input, enter your age. Now app dot write name, app dot write और age। हमने क्या कर दिया है? नाम को भी लिख दिया और एज को भी लिख दिया है। और app dot write स्लैश n। मैं चाहता हूं कि जब भी नेम और एज के बाद क्या आ जाए? एक न्यू लाइन में। जब भी हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें ऐड करेंगे तो वो नई लाइन में होने चाहिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओके, एंटर योर नेम, एज। नाउ डू यू वांट टू सेव मोर रिकॉर्ड? यस। ठीक है, दो रिकॉर्ड्स इसमें ऐड कर दिए। इस प्रोग्राम में मैंने पहले भी एग्जीक्यूट किया था, इसलिए पहले से भी कुछ रिकॉर्ड होंगे इसमें। और जैसे मैंने फाइल ओपन किए, app equals to open student.txt, हमारी फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट। और डाटा इक्वल्स टू app.read, रीड फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे? हम जो भी स्टूडेंट फाइल के अंदर डाटा होगा उसको रीड करेंगे और उसको हमने प्रिंट कर लिया। देखिए क्या आउटपुट आता है। अभी हमने कपिल और देवेंद्र अभी ऐड किया है और ये पहले से था उस फाइल। तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी हम डाटा इसमें ऐड करेंगे अपेंड मोड में, जो भी डाटा हम ऐड करेंगे वो उसमें पहले से रहेगा, हमारा डिलीट नहीं होगा। हर बार हमको क्या नया डाटा ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो भी हमारी किसमें रहेगी? फाइल के अंदर रहेगी। यही हमारी फाइल हैंडलिंग का या टेक्स्ट फाइल का यूज है। फाइलिंग का ये यूज है कि जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो फाइल के अंदर रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी फाइल, ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। अभी तक हम टेक्स्ट फाइल देख रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस इन बाइनरी फाइल। If you want to write structure such as list, dictionary, etc., and also we want to read it, then we have to use a module in Python known as pickle. बाइनरी फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए हमें एक मॉड्यूल का यूज करना होगा, उसका नाम है पिकल। पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द डाटा इनटू द फाइल। ये क्या करेगा? पिकलिंग क्या होगा? पिकलिंग मीन्स जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर देंगे या लिस्ट में देंगे या डिक्शनरी की फॉर्म में देंगे
वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द डाटा इनटू द फाइल। ये फाइल में लिखने से पहले ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा। एंड व्हेन वी रीड अ फाइल देन अ ऑपोजिट ऑपरेशन इज टू बी डन, मीन्स अनपिकलिंग। जब हम फाइल से जब बाइनरी फाइल को रीड करेंगे तो क्या करेगा, वापस पिकलिंग का ऑपोजिट अनपिकलिंग करेगा। मीन्स क्या करेगा, जो भी वहां पर बाइट स्ट्रीम रहेगा उसको हमारा डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये पिकल मॉड्यूल का काम है कि जो भी हम डाटा स्ट्रक्चर पास करेंगे, लिस्ट है या डिक्शनरी है, जो भी हम पास करेंगे उसको क्या करेगा, वो डाटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद वो राइट करेगा फाइल के अंदर। और अनपिकलिंग में जस्ट ऑपोजिट ऑफ पिकलिंग। पिकल मॉड्यूल हैज टू मेथड, डंप टू राइट एंड लोड टू रीड। पिकलिंग में हम दो मेथड्स का यूज करेंगे, जैसे वहां पर टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड एंड राइट यूज कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर डंप और लोड का हम यूज करेंगे। डंप फंक्शन किसके लिए यूज करेंगे, राइट करने के लिए, और लोड किसके लिए यूज करेंगे, रीड करने के लिए। तो जैसे टेक्स्ट फाइल में हमारा राइट था, यहाँ पर क्या है, डंप है, और वहां पर रीड था, यहाँ पर क्या है, लोड है। देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है इधर। प्रोग्राम टू राइट लिस्ट सीक्वेंस इन अ बाइनरी फाइल। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि एक लिस्ट में कुछ कंटेंट है, उसको किस में लिखना है, हमको बाइनरी फाइल में लिखना है, ठीक है। ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट पिकल। हमने पिकल को इंपोर्ट कर लिया है, लिस्ट बना ली है, lst इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। और हमने क्या किया है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया f इक्वल्स टू ओपन, बाइनरी फाइल का नाम दिया मैंने बिन फाइल, बिन फॉर बाइनरी फाइल डॉट dat। तो जो हमारी बाइनरी फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, dat, और हमारी टेक्स्ट फाइल का .txt। तो the extension of binary file is .dat and wb means writing in a binary file. Simple W means writing in a text file. WB means we are writing something to a binary file. B denotes binary file. Now pickle dot dump. अब हम क्या करेंगे, जो पिकल के अंदर dump means writing, टेक्स्ट फाइल में राइट होता था, यहाँ पर क्या है, डंप। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डंप मेथड का यूज कर रहे हैं। और जो भी कंटेंट है हमारा लिस्ट में 1 2 3 4 5 6, वो लिस्ट पास करेंगे, और किसमें लिखना है हमको, एफ, जो भी फाइल का हैंडलर है वो हमने पास कर दिया डंप मेथड के अंदर, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया है, बाइनरी फाइल के अंदर हमने क्या लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6। देखिए बाइनरी फाइल कहीं बनी है क्या, इसमें बन गई बिन फाइल। देखिए ये बन गई बिन फाइल डॉट dat, लेकिन हम इसको रीड नहीं कर सकते। बाइनरी फाइल्स को हम नोटपैड का यूज करके नहीं पढ़ सकते, तो हमको इसको रीड करना है, तो क्या करेंगे, वापस इसको रीड करेंगे। अभी क्या किया हमने, बाइनरी फाइल को राइट किया है, अब रीड करना है तो हम इसको रीड भी कर सकते हैं। क्या नाम दिया था बाइनरी फाइल का, ये देखिए उसके लिए प्रोग्राम बनाया है, वही इंपोर्ट पिकल। नाउ f इक्वल्स टू ओपन rb, यहाँ पर फाइल नेम और कोमा rb दिया है। टेक्स्ट फाइल में हम क्या देते थे, सिर्फ r, यहाँ पर rb, b मीन्स बाइनरी फाइल। नाउ डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। वहां पर क्या था, हमारा रीड था, टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड, यहाँ पर लोड, और यहाँ पर फाइल का हैंडल हमने दे दिया है f। नाउ प्रिंट डाटा, जैसे इसको रन करेंगे हमारा लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो गई। ये है हमारा बाइनरी फाइल में कैसे हम रीड करते हैं, राइट करते हैं। नाउ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, वी ऑल नो दैट द फाइल्स आर केप्ट इन डायरेक्टरी विच आर आल्सो नोन एज फोल्डर। हम सब जानते हैं कि जो भी फाइल्स हम बनाते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो किसी न किसी फोल्डर में रहते हैं। एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज ए करंट डायरेक्टरी, और जो भी प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टरी होता है, कुछ पाथ होता है उसका, ठीक है, which is generally a default directory and Python allows see that default directory first। तो हम Python के प्रोग्राम का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं हमारा वो करंटली किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल
इंपोर्ट करेंगे OS. OS means operating system. OS module provides many such functions which can be used to work with files and directories. OS means operating system. Now OS module के अंदर एक होता है हमारा एक फंक्शन get CWD. Get CWD is a function which can be used to identify the current working directory. GWD means C for current, W for working, D for directory. तो get current working directory एक फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि अभी हम करंटली कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। देखो एग्जांपल बनाया है इधर, यहाँ पर क्या मैंने import OS, नाउ एक वेरिएबल लिया है CWD इक्वल्स टू OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट CWD वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो मैं कौन से में कर रहा हूँ अभी काम, करंटली C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर राजेश इस डायरेक्टरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो मेथड है हमारा, ये हमको बता देगा कि हम करंटली कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। नाउ कुछ स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स हैं। वी यूज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम टू गेट बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कुछ है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इस डॉट stdin. नाउ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मींस दिस डॉट std out और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम मींस दिस डॉट std error. प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड स्ट्रीम. नाउ इंपोर्ट सिस्टम हमने इंपोर्ट किया है f इक्वल्स टू ओपन रीडिंग मोड में हम यूज कर रहे हैं hello.txt फाइल को। लाइन इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन का यूज करके हम लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 को हम रीड कर लेंगे और हम सिंपल इसको प्रिंट भी कर लेंगे यूजिंग std out के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा था डाटा फाइल हैंडलिंग। धन्यवाद।